Okay. So let us discuss the exam paper. Question number 1, change into indirect speech. Number A, the question is, Sarla said, as you can see on the screen, Sarla said, I write this letter as I need your help. Now, इसको जब convert करना है तो please ध्यान से करना, word by word करना. Sarla said that. Now, I के बदले I write will become she wrote. Sarla said that she, because Sarla is a woman, she, हमेशा past tense में convert करोगे जब भी direct to indirect tense होगा. So write का wrote हो जाएगा. She wrote. Now don't rush into the next part. She wrote लिख के आगे copy मत करो, word by word सोचो. This हो जाएगा that. कई लोगों ने this को that नहीं किया है. So this हो जाएगा that. She wrote that letter as. Again I will become she, as she. Need हो जाएगा needed, as she needed my help. अगर वो मुझे बोल रही है your, तो my help. Okay, so question number 1A, I'm repeating once again. Sarla said that she wrote that letter as she needed my help. I'm repeating once again. Sarla said that she wrote that letter. This becomes that letter as she needed my help. Full stop. So इसमें इतना सारा changes है कि किसी ने भी fully correct नहीं लिखा है. Some people have written partly correct. This को that नहीं किया है, या फिर I need को needed नहीं किया है, your को my नहीं किया है. So as you find that in this sentence there are changes which have to be made in on 4 to 5 occasions. Okay, so Sarla, number 1, Sarla said that she wrote that letter as she needed my help. One part B. Question is, तुम लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में क्वेश्चन? हाँ सर. Yes, sir. Okay. हाँ सर. So one part B is, question is, the old man said, double quotes, I ate today, I will eat tomorrow. मतलब दो sentences है अलग अलग. So इसको अलग अलग sentence की तरह treat करो. Don't rush into it. The old man said that. यहां तक पहले लिखो, सांस लो, भागते हुए मत लिखो. अब आस्ते से सोचो. I ate today का होगा he. Now ये ate है, which means ये already past tense में है. Eat का ate. So I had told you कि अगर verb already past tense में हो तो तुम लोग past perfect tense कर दोगे. हाँ, had eaten. सिर्फ eaten नहीं, had eaten. Past perfect tense में करोगे. So I ate हो जाएगा he had eaten. Today के बदले लिखोगे that day. Today के बदले हमेशा लिखोगे that day. So the old man said that he had eaten that day. अब तुम full stop भी दे सकते हो या फिर and भी दे सकते हो. You can either give full stop जैसे क्वेश्चन में है, या फिर तुम and देके सेंटेंस को कंटिन्यू करो. अब वापस से सोचो, I will eat tomorrow. So I will eat हो जाएगा he will not eat the next day. हाँ. So will eat becomes would eat. Tomorrow is the next day. Please write the next day. कई लोगों ने सिर्फ next day लिखा है, the भी लिखना. Full stop. So the answer will सर be. हम डे. हाँ बोलो. सर हम लिखा है the day after. The day after, हाँ, the day after actually the next day या the day after, हाँ, the day after ठीक है, वो भी चलेगा. I have not penalized you for that. तुम्हारा wrong शायद कोई और वजह से हुआ था. The old man said that he had eaten that day. Full stop या फिर and he would eat. अब ate नहीं होगा, ये will it becomes would eat. He would eat the next day. Full stop. So the first two questions were more difficult. Last two, numbers C and D, थोड़ा easy है.
नंबर सी में ज्यादा चेंजेस नहीं करना है. नंबर सी, क्वेश्चन इज द मिनिस्टर सेड द स्टेट डज नॉट अलाउ द पीपल टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट. सो द आंसर विल बी द स्टेट. ये कई लोगों का करेक्ट हुआ है. द मिनिस्टर सेड दैट. अगेन ध्यान से करो, द स्टेट को तो चेंज नहीं करना है. द स्टेट डज नॉट अलाउ. डज नॉट अलाउ का डिड नॉट अलाउ होगा. डज बिकम्स डज Sir, का do पास्ट not. टेंस. Sir, do not. नहीं, डज और डू दोनों प्रेजेंट टेंस है. देखो, स्टेट अगर है, स्टेट के लिए डज हो रहा है. अगर होता स्टेट्स तो फिर डू होता. प्लूरल के लिए डू होता है और सिंगुलर के लिए डज, लेकिन दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, दोनों प्रेजेंट है. इसका पास्ट होगा डिड. सो द स्टेट डिड नॉट. अब एक और एरर कई लोगों ने किया, अलाउ को अलाउड कर दिया है. डिड के बाद कभी भी इस पे हम एक Allow. फर्दर कराएंगे कि नहीं, डिड के बाद कभी भी अलाउड नहीं होता, ये नहीं अलाउज होगा. डिड के बाद हमेशा वर्ब एकदम प्रेजेंट टेंस में रहेगा, विदाउट एस, विदाउट ईडी. द स्टेट डिड नॉट अलाउ. नो अलाउज, नो अलाउड. द स्टेट डिड नॉट अलाउ द पीपल टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट. टू टेक पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हो तो, बिकॉज टू टेक को टू टुक नहीं कर सकते. टू के बाद कभी भी टुक नहीं होता. टू के बाद टेक ही होता है. सो यहाँ पे अगेन जो एक ही चेंज होगा यहाँ पे, वो है डज नॉट अलाउ का डिड नॉट अलाउ. इनफैक्ट सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, डज का डिड. आई एम रिपीटिंग द आंसर. द मिनिस्टर सेड दैट द स्टेट डिड नॉट अलाउ द पीपल टू टेक पार्ट in the contest. Number D. Question is, my cook said we have not done much work yesterday. So here the cook said that Sir, V का ही हो जाएगा क्या? वी का ही क्यों होगा? वी का दे होगा. वी तो एक जन नहीं है ना. वी मतलब क्या हुआ? प्लूरल. तो वो लोग सब. कुक जो है वो सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है, अपने सारे कुक्स. यस Sir, it will be my cook or the cook. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माई कुक या द कुक? My cook. तो फिर द कुक क्यों? क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में अगर अ है तो यू विल राइट अ. माई द. माई कुक सेड तो माई कुक सेड. और तुम लोगों को सिर्फ कोट्स के अंदर का पार्ट को चेंज करना है इस सब सेंटेंसेस में. सो माई कुक सेड दैट दे. ठीक है, अब हैव नॉट डन को एक साथ पकड़ो. हैव नॉट डन का पास्ट है हैड नॉट डन. Had not done. Have, has and have are present tense. Has, have, present tense, and past is had. Sir, So had my not cook- done. Yes, my cook said that they had not done much work since Previous day. The previous day. तो yesterday का the previous day. In fact, एकदम ये नोट देके लिख लो. Tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, today, that day. Please memorize it. Note it somewhere. Yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, today, that day. So this is the complete answer. Please correct it. तुम लोग वापस से करके मेरे को सॉल्यूशन भेजना. टेंसेस में टेंसेस मोस्ट ऑफ यू हैव डन करेक्टली, बट अगेन थोड़ा बहुत एरर हुआ है. टू पार्ट ए चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट का रूल मैंने लिखाया था विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. So the tiger drinks water from the pond. First of all, you have to identify the tense. You have to identify the verb. The verb here is drinks, because drinks word को तुम change कर सकते हो into drink, drank, drinking. I am
तुम ये वर्ड जो है वो drunk. टेंस, तो यहाँ पे होगा द टाइगर। हाँ, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ फ्यूचर के लिए विल आएगा, फिर विल प्लस Will हैव have होगा। drunk. Will have द drunk. टाइगर विल हैव ड्रंक, DRUNK, एंड देन कॉपी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अच्छा, प्लीज नोट कि ये टेंसेस है, इसमें तुम्हें और कोई और किसी को चेंज नहीं करना, जस्ट टेंस के पार्ट को चेंज करना है। सो द टाइगर विल हैव ड्रंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। टू पार्ट बी, I will go. Again, look at the tense. Will go. Will go is my verb or tense. So I will go to school in a cab. अब to school in a cab को देखो, वहां पे कोई verb नहीं है. To is preposition, school is noun, in is preposition, a is article, and cab is again noun. So हम लोग का जो verb है वो will go है. So हम लोग सिर्फ will go को चेंज करेंगे, इसमें I को ही नहीं करोगे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं बिटवीन डायरेक्ट टेंस, स्पीच एंड टेंसेस। हम लोग जब स्पीच कर रहे थे इन क्वेश्चन नंबर 1, तो वहां पे जो कोटेशन के अंदर है उस केस में आई ही हो रहा था, वी दे हो रहा था, बट ये टेंसेस है, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं करना। सो डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट एट ऑल, जस्ट विल गो को चेंज करना है। अब लुक एट द इंस्ट्रक्शन हियर, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है इट विल बिगिन विथ हैड। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। Gone. सबसे बड़ा तुम लोगों ने जो किया है वो है लिखा है आई हैड वेंट टू स्कूल। आई हैड वेंट टू स्कूल ऑलमोस्ट 70% लोगों ने लिखा है, जबकि वेंट इज पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल इज गॉन। गो, वेंट, गॉन। So the answer will be I had gone. And then copy the sentence. I had gone to school in a cab. So this error is not, I was not happy to read this. When in class, you are all in senior school. Class 6, 7, 8, तुम लोग जो स्टैंडर्ड में हो उसमें अगर तुम लोग had के बाद gone आएगा, अगर तुमको ये नहीं पता या ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, then somewhere down the line तुम लोग बहुत rush में कियो। There is no need to, if I have given an assignment, please do not do it in a rush. Take extra time if required. Please don't do it in a rush. I had gone. Number C. Number C सभी का almost right हुआ है। The boy wrote to his parents, future continuous. तो इसका रूल है will plus be, be, and then ing. The boy will be writing to his parents. So number C का आंसर है the boy will be writing to his parents. राइटिंग में सिंगल टी होगा, WRITING, सिंगल टी होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का, आकाश स्पेशली तुम्हारा डबल टी तुम यूज करते हो, तो WRI डबल टी नहीं होगा, सिंगल टी होगा, WRITING सिंगल टी। जो लोग लेट से ज्वाइन किए और शुरू का पार्ट मिस किए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। द बॉय विल बी राइटिंग टू हिज पेरेंट्स। एंड लास्ट वन सभी का राइट हुआ है सर। तो क्लास के बाद आपको, सर आपको क्लास के बाद जो लोग कर गए, मतलब जो लोग को अच्छे से नहीं किया तो वापस से भेजना है क्या? हाँ, वापस से तो भेजना होगा। यू कैन डू इट लेटर इन द इवनिंग और टुमारो, बट डू इट। ओके सर, आई विल सेंड यू बाय टुडे ओनली। बट समझ गए, द मिस्टेक समझो, इट इज नॉट अबाउट असाइनमेंट। ये 3-4 क्वेश्चन करके यू विल नॉट बी एबल टू बिकम अ लर्नड स्कॉलर। द पॉइंट इज यू मस्ट लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक यू मेक इन योर लाइफ। अदरवाइज जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट दिस कॉन्सेप्ट दैट आई एम टीचिंग यू, ये तुम्हारे दिमाग में अंदर चले जा रहा है, so that you do not repeat it even after 6 months. Okay. Now I'm giving another sheet. अभी हम लोग साथ में करेंगे. So give the heading. Give the heading active voice to passive voice. सर हम लोग स्कूल में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाया ही नहीं है। नहीं, वो कोई बात नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं, ये जो ग्रामर में कोई सिलेबस नहीं होता, ग्रामर और मैथ्स में, तो तुम्हें वॉइस, स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ करना है। तो आई विल ट्राई टू डू एवरीथिंग मिक्स अप करके, सो दैट तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बिकॉज क्लास 6 एंड 7 में ये सब कुछ है, डिपेंडिंग ऑन स्टेजेस अलग अलग हो सकते हैं। सो शेयरिंग विद द नेक्स्ट शीट हम यहीं पे शेयर करें, देख देख के करो।
मतलब I will do with you. Okay, active to passive voice. Give the heading active to passive voice. हम सिखाएंगे तुम लोग को. Just give the heading active to passive voice. Look at question number 1. Question number 1 is the cat killed the mouse. The Now, mouse active to was passive killed by voice. the cat. So this is easy. ये अच्छा, आता active to है passive voice क्या होता है? हाँ आता है, but we will do the entire thing. Active to passive voice basically जैसे हम लोग हिंदी में अगर बोलें बिल्ली ने चूहे को मारा. बिल्ली ने चूहे को मारा. ये एक्टिव वॉइस है. बिल्ली ने चूहे को मारा. और बिल्ली चूहे के द्वारा मारा गया. गुड. नहीं, बिल्ली ने चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया. हाँ, बिल्ली ने चूहे को मारा तो इसका उल्टा क्या होगा? चूहा बिल्ली द्वारा मारा गया. राइट? तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो बिल्ली चूहा द्वारा मारा गया. सर So, the mouse was killed by the cat. हाँ, बट जो हम हिंदी में बोले वापस से हम बोल रहे हैं कि हिंदी में भी समझो. देखो, लैंग्वेज इंप्रूव करने का तरीका है कि हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश वर्ड आना चाहिए और हर इंग्लिश वर्ड का हिंदी वर्ड आना चाहिए. ये टू वे ट्रिक है. लेट मी आस्क यू अ रैंडम वर्ड और उसका मुझे इंग्लिश वर्ड बताओ. ठीक है? राधिका, फर्स्ट आई विल डू दैट. I will first do a vocabulary class. चलो हम तुम लोग से एक एक करके I will give you a random हिंदी word. तुम लोग को उसका इंग्लिश वर्ड बोलना है. अच्छा राधिका, कब्रिस्तान का इंग्लिश बोलो. कब्रिस्तान. बाकी कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा. Sir, burial place. Burial place, okay, to an extent ठीक है. Other options can be other. You need to know more answers. हम लोग graveyard भी बोलते हैं या cemetery बोलते हैं. Okay, cemetery. CEMETERY. Sir, can't it be burial ground? हाँ, burial place, burial ground, cemetery भी बोलते हैं, graveyard भी बोलते हैं. So these are the words. Sir, Cemetery graveyard is the का word you need to know. GRAVEYARD, graveyard. सर आप And क्या please करवा रहे note थे the सर? word मेरा गलती से cemetery. मेरा लीव हो गया सर. आप क्या बोले अभी? और मेरा गलती से थोड़ा लीव हो गया. I am doing vocabulary class first, which means I am going to ask you a Hindi word और उसका तुम्हें English बोलना है. The first question was presented to Radhika कि कब्रिस्तान का English word क्या है? तो उसका आंसर है burial place, she said. But a more better answer is cemetery. Cemetery word use होता है. उसका spelling लिख लो. CEMETERY. 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 So this is important because you can get a comprehension in which this word can come. Okay, so कब्रिस्तान को cemetery भी बोलते हैं, graveyard भी बोलते हैं, and obviously Graveyard का spelling बोल सकते हैं. Graveyard is GRAVEYARD, one word. Graveyard दोनों को चिपका के लिखो, single word. Okay, sir. Right. Okay, next question is coming to you, Akash. Okay, I sir. will give one Hindi word, उसका English word बोलना है. So Okay. मुझे बताओ. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत जोर से बारिश हो रही है. अगर तुम्हें बोलना है मूसलाधार बारिश, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सेंटेंस में बोल सकते हो. जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? It's raining heavily. या और कोई बेटर वर्ड? कैन यू गिव मी वन वर्ड फॉर इट? सर मैं बोल ठीक सकता है, हूँ. इट्स रेनिंग हेवीली करेक्ट है. यश श्रेयस बोलो. सर इट्स रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स. ओके, ये तो गुड. ठीक है proverb है. विवान. हाँ, ये एक फ्रेज है. हाँ, मतलब ये आंसर भी है. ये भी एक torrential rain. लाइक वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन you have to say it is raining cats and dogs. Sir, torrential rain. बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हिंदी में हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कुत्ता बिल्ली गिर रहे हैं. ये इंग्लिश में बोला जाता है. इंग्लिश में तो अगर तुम सेंटेंस ये तो एक वो proverb हो गया ना. It's raining cats and dogs. Sir, torrential rain भी बोल सकते हैं. नहीं पढ़ती भी कॉम्प्रिहेंड.
इसके अलावा एक और वर्ड नोट करो, आई एम सेंडिंग यू इन चैट बॉक्स ऑल्सो। लाइक अगर सपोज बोलना है कि मैं भारी बारिश में अटक गया था, तो तुम बोलोगे आई एम स्टक, जैसे आई एम स्टक। और आई गॉट कॉट, जैसे मुझे बोलना है हम भारी बारिश में फंस गए, तो यू कैन से आई गॉट कॉट इन the word here is a downpour. Downpour is a very important word which means downpour word का मतलब ही है तेज बारिश। कभी भी हल्के से बारिश के लिए downpour word यूज नहीं होता। Please copy the sentence I have sent you. I got caught. I got caught, C-A-U-G-H-T, in the downpour. D-O-W-N-P-O-U-R. I got caught in the downpour. So what we have learned today is that भारी बारिश के लिए हम लोग it is raining heavily यूज कर सकते हैं, बट ये क्लास 3 स्टैंडर्ड है। it is raining cats and dogs यूज कर सकते हैं, जो कि तुम्हारा करंट स्टैंडर्ड है। या फिर जैसे कि I got caught in the downpour, या फिर it's a downpour। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे it is raining downpour, नहीं बोलेंगे कभी भी ऐसे। ये मत बोलना कि it is raining downpour, तुमको बोलना है oh my god it's a downpour, मतलब काफी तेज बारिश। ओके, सिमिलरली कब्रिस्तान के लिए द वर्ड्स वी हैव लर्नड इज बरियल प्लेस, बरियल ग्राउंड, ग्रेवयार्ड, सिमेट्री। तो हर एक वर्ड का अगर ज्यादा वर्ड्स तुम्हें पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट। ओके, नेक्स्ट किसका टर्न है? आर्यन तुम्हारा। अगर बोलना है कि बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, इसे बोलते हैं टिप टिप, बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, तो आर्यन इसका इंग्लिश क्या होगा? कैन यू टेल मी? Others cannot prompt, but if you know the answer, others you can just type and send. Sir, can you repeat what you said? I got disconnected. हाँ, I am saying ये question आर्यन को है, तो others can just send me in the chat box. ठीक है, आर्यन you cannot. Okay, Sir, what is विहान this? तुम बोलो। Sir, what is the question? हाँ विहान तुम ही इसका आंसर दो। The question is कि if I have to say कि हल्का हल्का बारिश हो रहा है, means टिप टिप बारिश हो रही है, हल्का बूंदाबांदी, तो उसको इंग्लिश में Sir, कैसे it बोलोगे? is drizzling. It is drizzling. Good. So it's a downpour. So, drizzle word. नहीं, downpour is heavy rain. तो drizzle नहीं, droppings word नहीं होता है। droppings तो इसको बोलते हैं, droppings word नहीं यूज होता है। droppings word उसको बोलते हैं, बीट को बोलते हैं, कबूतर के बीट को। ओके, उसको dropping बोलते हैं। इसका आंसर होगा drizzling। और देवांश, drizzling रेन नहीं लिखोगे तुम, drizzling के साथ रेन वर्ड नहीं आएगा। जैसे डाउनपोर के साथ रेन वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ डाउनपोर आएगा। सो योर आंसर विल बी दैट इट इज ड्रिजलिंग और इट हैज स्टार्टेड टू ड्रिजल। प्लीज ये दोनों सेंटेंस कॉपी कर लो। फर्स्ट लिखो इट इज ड्रिजलिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है। इट इज ड्रिजलिंग, आई एम सेंडिंग द स्पेलिंग ऑल्सो। DRIZZLING. DRIZZLING, इट इज ड्रिजलिंग। तो ने किस तरह से लिखना है वो भी लिखो। तुम लोग से ड्रिजलिंग रेन लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यू हैव टू ओनली राइट इट इज ड्रिजलिंग, या फिर यू कैन से दैट इट हैज बिगन टू ड्रिजल। It has begun, B-E-G-U-N, it has begun to drizzle। यहाँ पे देखो कौन सा टेंस है, has begun में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो श्रेयस, ये एरर तुम वापस से कर रहे हो। इट हैज बिगन नहीं होगा, has के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो begin, began, begun, begin, began, begun। तो has के बाद began नहीं आएगा, begun आएगा, B-E-G-U-N। It has begun to बिगान और drizzle। बिगन में क्या अंतर है सर? बिगान और बिगन, जैसे went और gone में क्या फर्क है? सर पास्ट टेंस और एक पास्ट पार्टिसिपल। have के बाद पास्ट टेंस नहीं आता, पास्ट पार्टिसिपल आता है, gone आता है। तो वैसे ही जैसे राइट, रोट, रिटन, हम लोग हैज रोट नहीं बोलते, हैज रिटन बोलते हैं। तो उसी तरह से हैज बिगन नहीं होगा, हैज बिगन होगा। हाँ आर्यन ठीक है, यू कैन जस्ट सेंड मी इन द चैट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन ख्याति, योर टर्न। यस Okay, so my question is that
इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, इफ आई हैव टू से, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ आई हैव टू से दैट, सपोज Yes, sir. आज मैं काफी थक गया हूँ, या आज मैं काफी थक गई हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, बोलो। टुडे, I got really tired today. ठीक है, चलो ये क्लास 3 स्टैंडर्ड है, अब अपना स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करो। Ma'am, कुछ? sir, Apart lethargic. from tired, Lethargy. lethargic is not tired, lethargic is आलसी, तो tired वर्ड के लिए नहीं आएगा वो, मतलब जैसे तुम बोल सकते हो आज आई एम फीलिंग सुस्त, देन यू कैन से आई एम फीलिंग लेथार्जिक। टायर्ड इज, आई नो टायर्ड इज करेक्ट, टायर्ड तो क्लास 3 स्टैंडर्ड है, क्लास 1 स्टैंडर्ड है, अपने इसको और कोई वर्ड बोल सकते हो ख्याति? Sir, no idea. Sir, I feel worn now. वेट, टाइप करके दो। विहान, श्रेयस, Sir, Vivan, Lakshya? exhausted. Sir, exhausted. exhausted, okay, Sir, fatigue. so fatigued, okay, good श्रेयस। तो फिर हाँ, worn out is a good answer also। तो इसका हम लोग 4 आंसर हम भेज रहे हैं। एक तो है आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, वो तो सबको पता है, आई एम फीलिंग टायर्ड या वेरी टायर्ड, तो वो हम नहीं भेज रहे हैं। इसके अलावा यू कैन से आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, या फिर आई एम फीलिंग फटीग्ड। Sir, I am feeling sleepy. नहीं, स्लीपी नहीं एग्जैक्टली, वो ड्राउजी स्लीपी वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, टायर्ड और स्लीपी में डिफरेंस है। आई एम फीलिंग फटीग्ड, या फिर आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग वॉर्न आउट, और आई एम फीलिंग वेरीसम। तुमने जो बोला करेक्ट है देवांश, सो आई एम फीलिंग वेरीसम इज द नाउन फॉर्म which means worn out, varied. So please the better answers will be, let's say, exhausted or fatigued for your standard. Okay, next, Kavya, are you there? Sir, tired का सर हम लोग स्कूल में सर ड्राउजी भी लिखाया था। नहीं, जो टायर्ड है वो ड्राउजी होगा। जनरली क्या होता है कि जो पर्सन टायर्ड है वो ड्राउजी भी होता है, बट एक्चुअल मीनिंग टायर्ड का ड्राउजी नहीं है, समझ गए? ड्राउजी का मतलब है नींद आना हल्का हल्का, तो जनरली जो टायर्ड होता है वो ड्राउजी होता है यूजुअली। अ पर्सन हु इज टायर्ड विल आल्सो बी ड्राउजी, बट द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ टायर्ड इज नॉट ड्राउजी। सर exhausted हो सकता है, fatigued हो सकता है। हाँ, एग्जॉस्टेड फटीग्ड में रहो। अच्छा काव्या, यू से देन व्हाट इज द इंग्लिश फॉर, ओके, सपोज इफ आई हैव टू से दैट, अच्छा, व्हाट इज द हिंदी इंग्लिश वर्ड फॉर चेहरा? चेहरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई नीड, सर face. हाँ फेस तो पता है, बट अनदर वर्ड, गिव मी वन मोर वर्ड। कौन बोल पाएगा? सर profile. प्रोफाइल एग्जैक्टली फेस नहीं है, बट ठीक है, चलो एक क्लोज Sir, आंसर है। countenance. काउंटेनेंस इज अगेन अ काउंटेनेंस मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली चेहरा, बट ठीक है, काउंटेनेंस इज आल्सो गुड आंसर। Visage, V-I-S-A-G-E. विसाज, यस, सर वेरी गुड। सर ये वाला vocabulary हम लोग स्कूल में करवाया था, वहाँ पे हम लोग को लिखाया था प्रोफाइल, कॉन्टिनेंट और एक मग बोल के कुछ। विसाज, हाँ देखो इसमें 2-3 चीज होता है। एक होता है चेहरे का एक्सप्रेशंस को रीड करना, उस केस में हम लोग काउंटेनेंस वर्ड यूज करते हैं, बट चेहरे को यानी फिजिकली फेस को विसाज बोलते हैं। इट इज प्रोनाउंस्ड एज विसाज, सर विसाज तो not as कैरेक्टर होता है visage. ना? नहीं, कैरेक्टर नहीं होता। VISAGE, विसाज, VISAGE, विसाज। ओके, Sir, Soham, your turn. visage can also be mask. It can be mask, like जैसे face can also be mask। हम लोग कभी बोलते हैं ना कि he is double faced, यानी उसके फेस के ऊपर एक और फेस है, तो उस केस में we can also say visage, but otherwise visage does not mean mask, visage means face only। Okay, Soham, your turn। What is the word for
say if you have to say that I'm giving you a sentence, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. सेंटेंस है that मैं तेजी से घर से निकला. इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में. सोहम, आर यू देयर? मैं तेजी से घर से निकला. इसको So इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. I ran fast out of the house. सर फास्ट की जगह स्प्राइटली हो सकता है. I ran rapidly. सर आई रैन स्प्राइटली जो भी आप उसके बाद बोले. एक मिनट सर. बेसिकली यू आर सेइंग आई रैन आउट ऑफ द हाउस ना. रैन के बदले और कोई वर्ड दो मुझे. आई रैन आउट ऑफ द हाउस. Sir, rushed out. Sir, I Rushed out get from the out house. of the house Got out fast. होगा. Rapidly. Sir, I sprinted. Sir, I got Good. out of my house in a hurry. ठीक है, बट मुझे वर्ब चाहिए रन के बदले. तो ठीक है, स्प्रिंटेड किसने बोला था? वेरी गुड. किसने कहा स्प्रिंटेड? ओके, सो स्प्रिंटेड. अब देखो किस तरह से लिखना है तुम लोग को. रन के बदले हाउ, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग दिस? लेट मी सेंड यू. एक तो है आई स्प्रिंटेड आउट ऑफ माय हाउस. सर रैन का सर गैलोप हो सकता है. गैलोप नहीं, गैलोप ह्यूमंस के लिए यूज नहीं होता. कभी कभी होता है बट इस केस में नहीं होगा. स्प्रिंटेड का मतलब है तेजी से भागना. तो तुम्हें फिर फास्ट वर्ड या रैपिडली वर्ड यूज नहीं करना होगा. इसके अलावा यू कैन से आई डार्टेड आउट ऑफ माय हाउस. DARTED. प्लीज ये सब वर्ब को नोट करो. रन से निकलो. डार्टेड वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड डार्ट विच इज अ गेम. डार्ट एक गेम है जिसमें हम लोग को थ्रो करना पड़ता है डार्ट को उस बुलसाई में. सो डार्टेड का मतलब ये डार्ट की तरह तेजी से निकलना. या फिर एक और इजियर वर्ड है आई शॉट आउट ऑफ द हाउस. SHOT. शॉट का मतलब है गोली की तरह निकलना. तो ये सब का मतलब ये फास्ट निकलना. अनदर वर्ड इज डैश्ड. DASHED. I dashed out of my house. DASH. ये Sir, SH होगा, sorry. can it be I rushed out of my house? हाँ, I rushed out of my house is something which everybody knows. तो but ये जो 3-4 मैं verbs दे रहा हूँ इसको नोट करो. I sprinted out of my house, darted, shot या dashed. Say example. Let me give you an example. An example will be like जैसे recess के times. Okay, so when the tiffin bell rings, comma, the students. ये प्रेजेंट टेंस में अगर लिखना है तो द स्टूडेंट्स डार्ट आउट ऑफ द क्लासरूम या स्प्रिंट आउट ऑफ द क्लासरूम या डैश आउट ऑफ द क्लासरूम. सो दीज थ्री, इंस्टेड ऑफ सेइंग ran out, you can say dash, dart or sprint. It is in present tense. Out of the classroom. So when the tiffin bell rings, the students dart out, sprint out or dash out of the classroom. Another word is storm. Like I stormed out of my house. ये भी easy word है. तो stormed word का मतलब ही होता है कि हम लोग एकदम हवा के स्पीड से या साइक्लोन की तरह निकल रहे हैं. So all these words contain the urgency और speed. इसके साथ तुम्हें rapidly या fast word add करने की आवश्यकता नहीं है. You do not need to say I darted fast. Darted का मतलब ही है कि to run fast. Okay, so the words we have learned today for a run or ran fast is dart, dash, sprint, storm, rush. ये 5 अलग-अलग words है which actually will help you to improve your standard. Otherwise, you have to always think कि हम जो word बोले या मैं जो sentence बोला वो क्या क्लास 3, 4, 5 के बच्चे को समझ में आएगा. और अगर वो समझ में आएगा उसको, हो सकता है. स्कैम्पर हो सकता है बट स्कैम्पर नॉर्मली डर के लिए यूज किया जाता है. जैसे तुमने कोई चीज को देखा, जैसे द चाइल्ड गॉट अफ्रेड ऑफ द रैट एंड स्कैम्पर्ड आउट. तो स्कैम्पर्ड वर्ड तब यूज करेंगे जब कोई चीज से डर के भाग रहे हो, कोई चीज से घबरा के भाग रहे हो.
जैसे कि अ बैट फ्लू इनटू माय रूम एंड आई स्कैम्पर्ड आउट, ठीक है, बैट समझते हो, हाँ चमगादड़, सर। अ बैट फ्लू इनटू माय रूम एंड आई स्कैम्पर्ड आउट। तो स्कैम्पर्ड तब यूज करना है जब तुम कोई चीज से डर के भाग रहे हो, अदरवाइज स्कैम्पर्ड वर्ड यूज नहीं होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटायर सेटअप ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स है, सबका यूसेज सेम नहीं है। रन तुम कभी भी यूज कर सकते हो, दैट इज वाई रन को हमेशा क्लास 1 2 से सिखाया जाता है, बिकॉज वो कभी भी यूज कर सकते हैं। स्कैम्पर तब यूज करेंगे जब कोई डर या नर्वसनेस से भाग रहे हो, और जब कोई सेंस ऑफ इमरजेंसी है, लाइक यू आर सेंस ऑफ अर्जेंसी है, कोई यू आर सॉर्ट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, either because you are excited like the school children after the bell rings, या फिर because of some need, then you can use words like stormed, rushed, darted, dashed, sprinted. hastened word भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। so this is the way in which you have to use words. okay, Vivan Ganeriwala, Vivan, tell me how to again try to translate this in English. So the sentence is that जैसे एक बदमाश आदमी ने गांधी जी को बाजार में मार दिया। उसको बोलो, एक बदमाश आदमी ने गांधी जी को बाजार में मार दिया। अब इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। A criminal killed Gandhiji in the bazaar. मार्केट प्लेस, Market बाजार भी place. बोल सकते हो, एट द मार्केट प्लेस। ओके, Sir, यस, others chip in with your answers. अपना आंसर बोलो। नॉटी पर्सन यहाँ राधिका नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वो एक तरह का लाइक sir, क्रिमिनल है। sir, यस, sir, villain, विलेनस पर्सन बोल सकते हो। sir, offender. विलेन, ऑफेंडर वर्ड यहाँ यूज नहीं होगा। और कुछ किलर, किलर, हाँ मतलब एक ही बात है, किलर। Sir, culprit. गून ठीक है, कल्प्रेट ठीक है, बट अगेन कल्प्रेट हम लोग स्मॉलर वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। हाँ, Sir, notorious man. yes, notorious man. So you can use the word this, a notorious man. Notorious is the word I was looking for. अब देखो, एक तो a notorious man यूज करोगे, और उसके बाद killed के बदले you will say assassinated. This is the word which you have to learn today. What is the meaning of assassinated? When a famous person, ये sentence copy करो, a notorious man, NOTORIOUS, a notorious man assassinated Gandhi at the marketplace. Assassinated, ASSINATED, ASSINATED, assassinated. Now, what is the meaning of assassinated? Assassinated means assassinated word is used. सोहम, assassinate का स्पेलिंग गलत है। हाँ, goon is a good word सोहम। assassinated का स्पेलिंग ध्यान से देखो, वो है assass, पहले ASS 2 बार आएगा, उसके बाद होगा INATED। Now, assassinated का मतलब में हमेशा याद रखना, कब यूज करोगे assassinate वर्ड? जब कोई फेमस पर्सन को मारा जाएगा, ठीक है? The person has to be a famous person, like a celebrity, a cricket star, a sports star, a movie star, a politician, somebody who is a national or international figure. अगर कोई हम लोगों को मर्डर कर दे तो तब हम लोग कभी भी वर्ड assassinate यूज नहीं करेंगे। सेकेंडली, assassinate वर्ड तभी यूज करोगे अगर उस फेमस पर्सन को पब्लिक में मारा जा रहा है, ओपन में, जैसे मार्केट, बाजार में, थिएटर में, मतलब कोई पब्लिक प्लेस में मारा जा रहा है, न कि उनके प्राइवेट चेंबर में। अगर गांधी जी का
कत्ल उनके घर में होता, सपोज कोई अंदर घुस के उनको मार दिया गोली, तब हम लोग असैसिनेट वर्ड यूज नहीं करते। असैसिनेट वर्ड हमेशा तभी यूज किया जाता है जब वो पर्सन बाहर में जा रहा है रास्ते में और तब उसकी हत्या हो जाती है गोली मार के या चाकू से, that then we use the word assassinate. So a murder which is conducted in the public, it can be out in the streets, सर out एग्जीक्यूट हो सकता है। in a car. Executed नहीं, यहाँ पे ये वर्ड सूट नहीं करेगा एक्चुअली। एग्जीक्यूटेड वर्ड एक लीगल मर्डर को बोलते हैं, जब किसी क्रिमिनल को बाय लॉ मारा जाता है, फांसी चढ़ा के या कैसे भी, या किंग या फिर कानून, जब कानूनी तौर पे किसी को मारा जाता है, मतलब उसे सजा देके मारा जाता है, तब हम लोग एग्जीक्यूट वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड वर्ड यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके, सो यू प्लीज याद रखो, अगर कोई बदमाश है, नहीं ग्लटनस का मतलब आकाश होता है, ग्लटनस तो उसको बोलते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है, लाइक फूडी को बोलते हैं ग्लटन, लाइक अ क्रो इज अ ग्लटन। सो ग्लटनस मतलब जो ज्यादा खाए। सर सवेज नहीं हो सकता? विच वर्ड? सवेज। सैवेज। सैवेज हो सकता है, बट सैवेज का मतलब अगेन वाइल्ड है, वाइल्ड मैन, सैवेज इज लाइक वाइल्ड, तो इट इज अ क्लोज वर्ड बट ज्यादा सूट नहीं करेगा। सैवेज मींस स्ट्रेंजर? नो, स्ट्रेंजर नहीं, सैवेज मींस लाइक अ वाइल्ड पर्सन। और मेरा क्वेश्चन था एक बदमाश इंसान, मतलब एक क्रिमिनल टाइप का। अगर कोई इंसान थोड़ा क्रिमिनल माइंड का है, then you can use the word notorious. Now I am telling you this because even in your literature you often get stories जिसमें कोई चोर है या कोई बदमाश है, तो तुम उसके लिए हमेशा ये instead of using the word wicked you can say notorious. So if there is a character like George Harris, then instead of saying George Harris was a wicked man, you can say George Harris was a notorious man. So please अभी तुम लोग इस लेवल पे नोटोरियस वर्ड यूज करो, जो कि क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए अच्छा वर्ड है। इससे भी हायर वर्ड है, एक और हायर वर्ड है नेफेरियस, वो काफी ज्यादा एडवांस्ड वर्ड है, वो तुमको अभी यूज करने का जरूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू नोटोरियस एंड ट्राई टू यूज इट इन योर लिटरेचर आंसर्स whenever you come across a criminal kind of a person. Okay. Lakshya, are you there? So what was the other word you said for notorious? हम टाइप करके दे रहे हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि अभी यूज करो। बट एनीवे ये वर्ड एक्चुअली कई सारे टीचर्स को भी नहीं पता होगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड वर्ड है। तो ये वर्ड तुम अगर यूज करोगे तो कर सकते हो, बट देन ये मत करो। नेफेरियस, नेफेरियस इज सिमिलर टू नोटोरियस, बट ये अभी मत यूज करो, ये तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा। ओके लक्ष्य, ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तब मेरा दोस्त उतर गया। या रुको, लेट मी जस्ट चेंज इट। राहुल ट्रेन में चढ़ा और रोहित उतर गया। इसको ट्रांसलेट करो लक्ष्य। राहुल ट्रेन में चढ़ा और रोहित उतर गया। लक्ष्य, आर यू देयर? Sir, yes sir. When Rahul boarded the train, sir दूसरा नाम क्या था? रोहित। When Rahul boarded the train, Rohit had departed from it. रोहित है डिपार्ट। तुम्हारा पहला वाला बहुत अच्छा था, इट इज एक्सीलेंट दैट राहुल। कई लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग को लिखना है व्हेन राहुल क्लाइम्ड अप द ट्रेन, तो चढ़ने के लिए हम लोग जब बस या हाँ जब भी बस या ट्रेन में चढ़ोगे तो क्लाइम्ड वर्ड यूज मत करना। कई लोग ऐसा लिखते हैं कि ही क्लाइम्ड ladders. तो हाँ यस, तो कभी भी जब कोई चीज कोई सवारी पे चढ़ोगे तो नहीं, वेंट आउट भी नहीं होगा ख्याति। और लक्ष्य, ये डिपार्टेड द ट्रेन हम लोग नहीं यूज करते। डिपार्टेड ट्रेन डिपार्ट होता है, बट तुम कभी ट्रेन से डिपार्ट नहीं होते। इसका आंसर लिखो दैट व्हेन राहुल बोर्डेड द ट्रेन, सर स्टेप्ड आउट? हाँ, यू कैन से बोर्डेड द ट्रेन कॉमा रोहित क्या तो लिख सकते हो गॉट डाउन, जो इजी Sir, सिंपल departed? वर्ड है। नहीं, रोहित डिपार्टेड नहीं होगा।
डिपार्टेड होगा जैसे वो घर से निकल गया, ट्रेन से निकल गया के लिए डिपार्टेड वर्ड यूज नहीं करते हम लोग। सकते हैं रोहित, यूज कर सकते हैं, स्टेप्ड आउट भी यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ स्टेप्ड आउट कर सकते हो, और रोहित गॉट डाउन या रोहित स्टेप्ड आउट ऑफ इट। तो स्टेप्ड आउट होगा या गॉट डाउन होगा। माय द रीजन बिहाइंड इट इज टू टेल यू कि डिपार्टेड नहीं होगा, और तुमने जो कहा ख्याति वो भी नहीं होगा, विच इज टू से वेंट आउट ऑफ द ट्रेन नहीं होगा। अच्छा इंग्लिश नहीं है, मतलब ये इंग्लिश क्लास सीनियर सेक्शन के लिए इट इज नॉट अ गुड लैंग्वेज, बिकॉज व्हेन यू राइट एसेज या लेटर्स तो तुम लोग कई बार डिस्क्राइब करते हो ट्रेन जर्नी को, तो तुम लोग उसमें लिखते हो कि एज ए क्लाइम द ट्रेन। अब एग्जाम कंडीशंस में यू गेट ओनली 25-30 मिनट्स टू राइट द एंटायर एसे और इवन लेस। तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में जो भी वर्ड आएगा तुम लिख दोगे, यू विल नॉट वेट एंड थिंक अबाउट इट। तो उस वक्त कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं, मतलब हम भी लिखते थे आई क्लाइम द ट्रेन, आई क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम्ड अप। तो क्लाइम्ड वर्ड यूज ही नहीं करना है कभी भी, हमेशा बोर्डेड वर्ड यूज करोगे। नहीं आता है। अच्छा चलो अभी एक चीज और बताओ, ये तो है तुम्हारा बस या ट्रेन, तो याद तब आएगा जब घर पे प्रैक्टिस करोगे वोकैबुलरी। अगर बस ट्रेन हम लोग यूज करें तो बोर्डेड यूज करते हैं, टैक्सी के लिए बोर्डेड नहीं बोलते हैं, आई बोर्डेड द टैक्सी कभी नहीं बोलते। टैक्सी में तुम बोल सकते हो कि गॉट इनटू द टैक्सी, गॉट इनटू, Got off. I got inside the गॉट taxi. इनटू या गॉट इनसाइड या गॉट इनटू, और गॉट आउट तो होगा ही। लेकिन stepped घोड़े के लिए in. क्या यूज करोगे? Stepped स्टेप्ड इन टैक्सी के लिए सूट नहीं करता कोई रीजन से, टैक्सी में चूंकि वैसा स्टेयर्स नहीं होता ना, इसलिए हम लोग टैक्सी में स्टेप्ड इन कर सकते हैं, स्टेप्ड इनटू द टैक्सी कर सकते हैं, ग्रुप not कर- व्हीकल्स के लिए अच्छा लगेगा। हाँ टैक्सी के लिए कर सकते हैं, Public but vehicle. इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा। लेकिन अब मुझे बताओ कि घोड़े के लिए अगर घोड़े पे चढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे? बोर्डेड द हॉर्स। तो क्लाइंब, अगर क्या क्लाइम्ड, क्या पूरा सेंटेंस बोलो, जैसे मैं घोड़े पे चढ़ा, क्लाइंब ऑन द हॉर्स। आई क्लाइम्ड द हॉर्स या क्लाइम्ड ऑन द हॉर्स, ठीक है, बट अगेन ये इससे बेटर लैंग्वेज चाहिए मेरे को। पहला बात, घोड़े के लिए बोर्डेड नहीं आएगा, ये याद रखो। आई बोर्डेड द हॉर्स इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज घोड़ा कोई व्हीकल नहीं है तुम जिसे बुक कर मतलब बोर्ड कर सकते हो। हाँ सोहम, श्रेयश, विहान, विवान, दिवांश, काव्य, क्या हाँ होगा? सर। गॉट ऑन टू द हॉर्स, ठीक है, बट मुझे और बेटर लैंग्वेज चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्ब, और उसका आंसर है, आई डोंट थिंक तुम लोग के दिमाग में आएगा। ये हार्ड वर्ड नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू वर्ड, लेकिन ये तुम लोग के दिमाग में नहीं आएगा। तुम लोग हमेशा याद रखना, घोड़े के लिए ये लिखोगे। कभी भी ऐसे आएगा ना, हिल स्टेशन का, डिस्क्राइब अ हिल स्टेशन, डिस्क्राइब अ सी बीच, तो तुम लोग बोल ही Sir, सकते हो I कि sea beach mounted में। the horse. वेरी गुड, सो दैट इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, दैट आई माउंटेड द हॉर्स। प्लीज ये नोट कर लो, क्योंकि कभी भी तुम लोग जब ऐसे लिखोगे जिसमें डिस्क्राइब करना है, हिल स्टेशन में भी आता है, मैंने हिल स्टेशन में आई माउंटेड द हॉर्स, बिकॉज लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं। सो व्हेनेवर यू डिस्क्राइब हॉर्स राइडिंग इन अ हिल स्टेशन, ऑन अ बीच, प्लीज नोट दिस वर्ड, आई माउंटेड द हॉर्स। इसका उल्टा होगा डिसमाउंटेड, ठीक है? तो इसका उल्टा लिखो, जब उतरना है तो डिसमाउंटेड। हालांकि तुम गॉट ऑफ भी लिख सकते हो, गॉट डाउन भी लिख सकते हो, अरे मेरे सर पे देखना इधर इधर। तो गॉट डाउन भी लिख सकते हो, बट द एक्चुअल द वर्ड इज होगा माउंटेड एंड डिसमाउंटेड। प्लीज नोट दिस, माउंटेड एंड डिसमाउंटेड। तो प्लीज हिंदी में पहले लिख लो कि मैं घोड़े पे चढ़ा और उतरा, तो उसका होगा आई माउंटेड द हॉर्स एंड देन डिसमाउंटेड। I mounted the horse and then dismounted. Okay, I'm done with it. Now I'm going back to the voice. हम थोड़ा बहुत करेंगे, rest I will give you for homework. अच्छा, Sir, look I at the took screen a now. seat on a horse. No, मतलब ठीक है। देखो तुम लोग सबका आंसर करेक्ट है, तुम लोग जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, बट तुम लोग ना जूनियर स्कूल से निकल नहीं पा रहे हो। एक स्टैंडर्ड होता है ना क्लास 2, 3, 4 के बच्चे का और 7, 8 के बच्चे का, तो तुमको वो स्टैंडर्ड क्रॉस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, तुम लोग जो बोल रहे हो वो ठीक है कि आई गॉट ऑन द हॉर्स, गॉट ऑफ द हॉर्स,
वो सब ठीक है, पर आप but जो बोल रहे हो वो ज्यादा ये verb- परफेक्ट लग रहा है सेंटेंस को ये suit वर्ब करने। सीखो, ये नया वर्ब है, तुम लोग को नया वर्ब सीखना पड़ेगा। तुम लोग सिर्फ रन और क्लाइंब कब तक करोगे? रन के बदले तुम लोग को डैश, डार्ट, स्टॉर्म, स्प्रिंट ये वर्ड सीखना है। वैसे ही क्लाइंब के लिए माउंट वर्ड सीखना है। तो वर्ड्स, नया वर्ड सीखो। Anyway, we will continue with vocabulary next week also. Coming back to voices, please write down the answer. Number 1 का लिखो, the mouse was killed by the cat. हम अभी 4-5 ठो कराएंगे, बाकी हम होमवर्क में देंगे। नंबर 1 लिखो, Sir, the the mouse, mouse was killed by रुको नहीं, cat. हम सारा नहीं करेंगे, अभी मुझे कराने दो। The mouse was killed by the cat. The mouse was killed by the cat. Sentence number 4. Question is, his teacher praised him. Answer, He was praised by his teacher. by his teacher. His लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे his है, तुम भी his लिखोगे। So he was praised by his teacher. He was praised by his teacher. सोहम, आई नो तुम्हारा ही हो चुका है, बट तुमको ये फिर से करना पड़ेगा घर पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। Okay, sir. Sentence number 8. Sentence number 8. A kite Rama was was made making by a kite. नहीं, यहाँ पे kite- ing है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस A टेंस kite है। was made. नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में being आएगा। made by him. Yes, good. So Rama was making a kite. इसका आंसर लिखो, a kite was being made, क्योंकि वो उस वक्त बना रहा है। was making का मतलब है कि वो कंटिन्यूअस टेंस है, वो उस वक्त बना रहा है। So जब भी ing होगा तो आंसर होगा being के साथ होगा। So नंबर 8 का आंसर लिखो, a kite was being made by Rama. नंबर 8 का आंसर लिखो, a kite was being made by Rama. नंबर 8 ठीक से समझा सकते हैं, नंबर 8 समझ में नहीं आया कैसे आपकी। हाँ, हम थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे कि I am doing a sum. Answer, a sum is being done by me. I am drinking water. Answer, water is being drunk by me. I am playing chess. Chess is being played by me. I am writing a letter. A letter is being written by me. Whenever we are using continuous tense, which involves ing, like writing, drinking, eating, playing, then in the passive voice, we will start with being, being. Okay, being के बाद past participle. Being written, being eaten, being drunk. Okay, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है नंबर 8 में, Rama was making a kite. So answer, a kite was being made by Rama. To an extent clear हुआ श्रेयस? As you do more and more, it will get clearer and clearer. Number Yes. 10. Number 10, my father will write a letter. The letter was written by my father. यहाँ तुमको tense देखना पड़ेगा. A letter Future will tense. be written by my father. Will be written. Will Very be good. written by my Yes. father. Yes. तो tense देखना. Don't do it in a rush. मेरे स्पीड में मत करो. अपने स्पीड में करो. तुम अभी पहली बार कर रहे हो या दूसरी बार कर रहे हो, तो तुम ज्यादा टाइम लो. लेटर इसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर सेंटेंस में टेंस अलग अलग है. यहाँ पे विल राइट है. तो हिंदी में क्या होगा? मेरे पापा एक पत्र लिखे, विल राइट मतलब मेरे पापा एक पत्र लिखेंगे, तो इसका पैसिव हो जाएगा, एक पत्र मेरे पापा द्वारा लिखा जाएगा. A letter Future will, tense. a भविष्य letter काल. would be wrote by my Will be father. written. Will be wrote नहीं, will be written. Oh, okay. Will be written. Will be wrote कभी हो सकता है, will be written होगा. By my father. ठीक है, तो आंसर लिखो, a letter will be written by my father. A letter will be written by my father. Number 11, I will conquer him. He will be conquered by me. I will conquer him. He will be conquered
जस्ट कॉन्कर लिख के ed लगा दो. He will be conquered by me. He will be conquered by me. Number 12. He kept me waiting. ये हार्ड है थोड़ा. He kept me waiting. सर हम Answer? बोले हाँ बोलो. I was kept waiting by him. Okay, good. So इसका आंसर लिखो. I was kept waiting by him. हम लोग अभी एजेंट ओमिट नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट फुल सेंटेंस लिख रहे हैं. I was kept waiting by him. I was, number 12. I was kept waiting by him. I was kept waiting by him. काव्य तुम लिख रहे हो कि चलेगा ये? नहीं I was kept waiting by him. प्लीज ध्यान से लिखो, क्योंकि हम इसमें अभी होमवर्क देंगे जो तुम लोग को आज ही करके मेरे को भेजना है. 1 to 20 तुम लोग को करना है, या 1 to 18 करना है, ये पूरा कॉलम करना है. नंबर व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा 16. ताकि हाँ हम हम भूल भेज देंगे, हम भेज देंगे. तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो ना अभी इसका. Sir, the ball Uh, was thrown by Saurabh. Saurabh. सौरभ थ्रू द बॉल, यहाँ पास्ट टेंस है, थ्रू इज पास्ट टेंस. यस, सो आंसर होगा द बॉल विच इज ऑब्जेक्ट. द बॉल वाज थ्रोन बाय सौरभ. आंसर लिखो नंबर 16 का. द बॉल स्क्रीनशॉट ball नहीं हो रहा was- मेरा. ठीक है सर भेज देंगे. स्क्रीनशॉट ball- में पूरा आएगा भी कैसे? साइड का तो पूरा लिखा नहीं, हुआ मेरे ही को नहीं है खाली सर. पहला चाहिए, खाली पहला वाला कॉलम चाहिए. 1 to 18. ठीक. हाँ ठीक है, तब हो जाएगा सर. हाँ, खाली पहला वाला लो. बाद को वो बात का थोड़ा हार्ड है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सौरभ थ्रू द बॉल. द बॉल वाज थ्रोन बाय सौरभ. द बॉल वाज थ्रोन बाय सौरभ. और नंबर 18, योर बिहेवियर वेक्सेस मी. अच्छा, वेक्स इज ऑल्सो वर्ड, प्लीज अपने वोकैबुलरी में ऐड करना. वेक्स का मतलब होता है इरिटेट. जैसे तुम्हारा छोटा भाई अगर तुमको इरिटेट कर रहा है, तो तुम उसको बोल सकते हो कि प्लीज डू नॉट वेक्स मी, मुझे परेशान मत करो. प्लीज डू नॉट वेक्स मी, यू आर वेक्सिंग मी. ठीक है, तो VEX वेक्स इज बेसिकली टू एनॉय और टू इरिटेट. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे इरिटेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? परेशान करना, परेशान करो, दिमाग मत खाओ. सो यू कैन से दैट यू आर वेक्सिंग मी, डू नॉट वेक्स मी. So vex is a very is a new word for you, but it is a very common word. You can use it every day in your day-to-day life. So number 18 होगा your behavior vexes me. Answer, ये present tense है. हाँ, your I am behavior vexed vexes me. by your behavior. हाँ, ये present tense है, तो यहाँ I was नहीं होगा, I am होगा. Yes, very good. So I am vexed by your behavior. I am vexed, VEXED. I am vexed by your behavior. I am vexed by your behavior. Okay, so that concludes the class for today. तुम लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 1 to 18 मेरे को पूरा करके भेजना आज शाम के अंदर. ठीक है सर. 1 to 18 पूरा करना. Everyone Okay, will do. sir. Even if you know this chapter, I don't care. ये वापस से करोगे, so that तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो. और वो वाला प्लीज वापस से कर लेना. जो एग्जाम पेपर सभी का खराब हुआ था, काव्य ने सिर्फ अच्छा किया, बाकी सभी का खराब हुआ था. लेकिन फिर से वापस से करना. एवरीबॉडी, वो आज मत करना, वो तुम लोग 2-4 दिन बाद करना, ताकि तुम लोग भूल जाओ, फिर वापस से करना. याद रहेंगे. हाँ, आज सब आंसर याद रहेगा, तो आज करके फायदा नहीं है ना. मतलब तुम 4-5 दिन बाद करना. लेट योर माइंड फॉरगेट इट, देन सी कि अब वापस से याद आ रहा है कि नहीं. लेकिन ये वॉइस आज कर लेना. ओके.